Hello everyone, myself Dr. Mary Radnamara from Department of Botany. Today we are going to take research design. What is the meaning of research design? What is research design? And we will see what is the need for research design in this lecture. So research design again it will be going to take one or more video lectures because it is one of the important class for research methodology. So we are going to deal especially in scientific region, scientific study, research study, why it is necessary, why it is needed to use research design and uh, um, what are the steps included in research design. So first, as in earlier class we deal with what is the research topic, how to take different aspect or important key points to choose research topic or research title. Now we see the next procedure to design your research work, why it is necessary and what is research work. So we see what is research design as it is on one liner you can say arrangement of conditions. What are the conditions you are going to use in your methodology? Research design, you have to design your research. Okay, arrangement of conditions for collection and analysis of data in a manner that aims to combine relevance to your research work and purpose. Okay, so in one liner you can say research design is arrangement of conditions. हम रिसर्च डिज़ाइन का अर्थ ये है कि आप रिसर्च को डिज़ाइन करते हैं, किन किन स्टेप का अरेंजमेंट होगा, किन कंडीशंस का अरेंजमेंट होगा, पहले आप रिसर्च डिज़ाइन कैसे करेंगे, किसी भी चीज़ को आप डिज़ाइन करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, सेकंड स्टेप क्या आएगा, थर्ड स्टेप क्या आएगा, फोर्थ स्टेप क्या आएगा। इस तरीके से रिसर्च डिज़ाइन एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी की, जिसमें आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रिसर्च प्लस उसको इकोनॉमिकल इवैल्यूएशन डेटा एनालिसिस और अलग अलग टाइप वेज जो है आपको कंबाइन करके रिसर्च डिज़ाइन में ये बात की स्टडी होती है कि हमें किस किस अरेंजमेंट और किन किन स्टेप्स को देखना है। सो as I stated, what is the meaning of research design? It is arrangement of arrangement of conditions. What are the conditions you are going to apply in your research is nothing but research design. Okay, so arrangement of different conditions that for your collection and data analysis, which also include in such a manner that research purpose will be economically validate. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिसर्च के डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कंडीशंस जिसके द्वारा आपके रिसर्च का वैल्यू प्लस आप इन एडिशन टू दैट आपको इकोनॉमिक इवैल्यूएशन, आपने अगर कह दिया कि किसी हैवी वर्क पे आपको काम करना है, जेनेटिक पे आपको काम करना है, या ऐसे स्पेशली फॉर रिसर्च इन साइंटिफिक प्रॉब्लम, scientific research need so much of new tools and technology, new equipment that take it will take economically weightage also. Okay, so research design इस तरीके से करना चाहिए कि आपको आपके रिपोर्ट कलेक्शन और आपके मेथोडोलॉजी को इकोनॉमिकली भी वेटेज मिले. Okay, so this is the overview or blueprint of research.
so that you can effortlessly do your research in continuity. आप अपने रिसर्च का ब्लूप्रिंट बना के रिसर्च को फ्लो में कर सकते हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट आर द प्रोसीजर यू वांट टू टेक. सो इन फैक्ट वी कैन से हम रिसर्च डिज़ाइन के वजह से बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट का आंसर हमें मिल जाता है. What are these aspects? You can analyze your data in terms of what, why, where, what type of requirement you need. Okay, all those question you have. आपको आपके रिसर्च से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं कि आपको किस तरह का रिसर्च करना है, किस तरह के इक्विपमेंट करना है, यूज करने हैं. ओके, what is needed, why it is needed to research design, all the answer or the W's, okay, what, why, where, all that things, the question you have, what is study about, what study is being made, what are the study you want to carry it out, what kind of procedure is you want, and what type of requirement data you want to find out. So all that thing, how it is analysis, and all the relevant questions is can be answered through research design. So the second point, need for research design, all those questions relevant to your research is answered by uh, giving a good, by doing a good research designing. Okay, so why it is important? एक अच्छा रिसर्च डिजाइन की जरूरत हमें इसलिए होती है कि जितने भी आपको रिलेवेंट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च you want to take, what type of study you want to take, what things you needed for your research, what type of data you want to process, and all the things included to prepare your manuscript. आपके जो डेटा और रिपोर्ट को प्रेजेंटेशन करने के लिए जो भी आपको ज़रूरत है, चाहे वो in terms of can be in terms of literature survey, or it is in the terms of literature review article or paper publishing. All these things are included in research designing. Okay, so meaning of research, in one liner you can say arrangement of different conditions. Okay, and with these conditions are what, where you will answer to why it is needed. The next thing, feature of a good design. आपका रिसर्च डिजाइन अच्छा है या नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा? You, what are the things you want to include in your research can be uh, as earlier as we stated in questions कि आपको एक अच्छा शीर्षक लेने से आपके रिसर्च का आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. तो वैसे ही अगर आप रिसर्च डिजाइन पे ज़्यादा इनपुट देते हैं कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और कैसे कैसे आप उसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं, क्वालिटी यू कैन check, you can take a checklist of what are included in research design. This will make sure that your research will be good and it will give a fundamental output. So, so, so we will see what features of a good design. आपके अच्छे डिजाइन आप में क्या क्या इंक्लूडेड है, ये आपको कैसे पता चलेगा? फर्स्ट, इंफॉर्मेशन ऑफ, you will get a good amount of information or information flow. The input of information or what you want to present through your research, output of information, you will design here itself. आपको जिस तरह के इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है या जिस तरह के इंफॉर्मेशन आप प्रेजेंट करना चाहते हैं अपने रिसर्च के द्वारा, दैट मीन्स if you want to do sampling, you want to data analysis,
विच पोर्शन ऑफ डेटा एनालिसिस यू वांट टू डू, आप किन किन बातों का डेटा एनालिसिस करना चाहते हैं in scientific terms and scientific study. If you want to do work on cancer, okay, on cell line, what are the things you needed, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो जैसे कि हमने फर्स्ट लेसन में देखा, रिसर्च एक क्या है, खोज है, फैक्ट्स एंड नॉलेज का। इट इज इट इज a collection of fact and knowledge. So all the things again here is repeated. Information flow. Research design could be better through how you collect the information about which type of topic you want, which what where you want to do, what you want to do, and then you have to arrange this फर्स्ट। आपके रिसर्च से अच्छा इंफॉर्मेशन आउटफ्लो होना चाहिए, इनफ्लो होना चाहिए, यानी आपका कलेक्शन ऑफ डेटा भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग। देन स्किल एनहांसमेंट, एनी टाइप ऑफ skill or new technology when you will provide in any study, then you will see that that will automatically add to your skills, or that will enhance your output, okay, in terms of skill or in terms of your advancement, okay। Same thing, किसी भी तरह का आप टूल्स एंड टेक्निक्स या कोई भी नए तरह की चीज़ें आपने रिसर्च वर्क में यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करेगी। दैट मीन्स इट विल इन्हांस योर स्किल, आपके स्किल में इम्प्रूवमेंट के लिए वो इन्हांस करेगी। सपोज यू वांट टू ऐड डेटा, और यू वांट टू एनालाइज एनी डेटा, more and more number of air pollution study you want to do, and then it required a number of data you are you are collecting from Raipur. You collected 10 samples, you collected 40 samples of water or air pollution, water pollution, and then you have to do। जब आप ज़्यादा मात्रा में डेटा कलेक्ट करेंगे, पहली बात आपके पास इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स, आपने कितने सारे डेटा कलेक्ट किए। अब इसे आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू या मशीन के थ्रू, HPLC के थ्रू और BOD COD के थ्रू आपको उसकी गुणवत्ता का, उसकी क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव assessment आप जब करते हैं, when you will do quantitative or qualitative assessment, you will put those data into your computer generated operator, or you will apply new software, or simple statistic also you will do ANOVA, SPSS, or any type of computer generated software or analysis you will do, data analysis will do, automatically it will enhance your capability to solve problem, okay। So this the second point, skill enhancement, आपके स्किल एनहांसमेंट को बढ़ाएगा। किसी भी तरह का अगर आप नए टूल्स एंड टेक्निक्स डेटा एनालिसिस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपकी कैपेबिलिटी को बढ़ाता जाएगा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव एक्सप्लोरेशन। आपके पास, आपने सपोज आपने सिनॉप्सिस प्रिपरेशन करते वक्त सिर्फ 2 या 3 ही ऑब्जेक्टिव दिए, बट as you required some new objective or you want to solve those objective, you will add in a new chapter, okay। So this could be an exploration work। अगर आप किसी नए टॉपिक को या नए वर्क को उसमें enhance करना चाहते हो, जो आपके फिजिबल यानी इकोनॉमिकली भी, बिना आपके खर्चे पे ज़्यादा जोर दिए भी अगर आपको ऐड हो जाता है, कोई रिजल्ट आपको मिलता है, readily it can be put into your reports or in your study, so that is a kind of exploration। आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सके, जितना ज़्यादा न्यू टेक्निक को यूज़ कर सके, that will be add to good in your writing work or your रिसर्च वर्क, ओके। देन ऑब्जेक्टिव्स, जो भी आपने ऑब्जेक्टिव बनाया है उसमें आपको एक्सप्लोरेशन की
वैल्यू अगर आप ज़्यादा बढ़ाते हैं या नया टास्क लेते हैं तो ये आपके एक साइन है, फीचर है गुड डिज़ाइन का। अगर आप डिज़ाइन अभी जैसे जैसे करेंगे, आप किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स ले रहे हैं, कितना ऑब्जेक्टिव आपको लेना है, उसमें कितना ऐड करना है, ये इससे आपका एक गुड रिसर्च डिज़ाइन का पता चलता है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ प्रॉब्लम। कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई सब्जेक्ट उठा लिया, आपने एक रिसर्च टाइटल उठा लिया, ओके, यू टेकन एन न्यू टॉपिक, you study, you done literature survey, and after some time you will find out new problem regarding your research topic। कई बार मिडिल 1 साल 2 साल करने के बाद आप लोग को पता चलता है कि इस रिसर्च में ये भी हो सकता है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, या ये जैसे आपने किसी एंजाइम पे काम करने की कोशिश करी है, if you want to do enzymological test and after 6 months of rigorous experiment you are coming to know that these things are not able to give this solution। अगर आप किसी पर्टिकुलर एंजाइम पर वर्क कर रहे हैं और आप 6 महीने एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं, फिर भी आपको आउटपुट नहीं मिल रहा, तो आपको बाद में पता चलता है कि ये कार्बोहाइड्रेट जनरेटेड एंजाइम नहीं है, या वो इस तरह से आउटपुट नहीं देगा, या फिर ये इस एनवायरनमेंट में काम नहीं करता है, या ये पौधे इस एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं करते हैं, या ये सॉइल यहाँ पे आपको लग रहा है कि आपने इस सॉइल पे इस टाइप का वर्क किया, लेकिन आपको 6 महीने बाद पता चलता है कि ये सॉइल इस तरह का रिजल्ट नहीं दे सकती, इसके लिए दूसरे टाइप की सॉइल की जरूरत है। तो अब इट मीन्स आई वॉन्ट टू स्टेट दैट you in between, after few times of experiment failure can occur, okay। experimental study और scientific study में failure is a part of research work। so कभी कभी क्या होता है, बहुत लंबे टाइम होने के बाद भी रिसर्च का एवेल्यूएशन नहीं आता है, तो इस चीज से बचने के लिए रिसर्च डिजाइन बहुत ज्यादा जरूरी है। Why it is in scientific study research design is important? Because as I told, failure or research condemnation of research experiments in scientific study is must, okay। there is some are negative outcome can be occur, or positive outcome, as outcome is outcome, but in terms of your research productivity there could be non-productive of it could be non-productive of research। so to avoid that type of circumstances कि आपका रिसर्च किसी तरह का प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहा है, इस तरह के कोई ऐसे टॉपिक या ऐसे कोई टूल्स एंड टेक्निक्स आप चूज ना कर लें, इसीलिए रिसर्च डिजाइन पे ध्यान देना, emphasis on research designing is must for especially in terms in case of scientific research study, okay। so this is nature of problem, you have to understand nature of your research problem, whatever it is, in terms of sample, okay, you have to design your sample could be insect, a tree, or soil, environment, any type of variables, okay। every factor is variable in scientific study, so multiple variable, multiple work you have to select properly, in what terms you are taking out those things, okay। आपको कोई भी टॉपिक सिलेक्ट करने से पहले, अपने सैम्पल डिजाइन चीजों को चूज करने से पहले बार बार लिटरेचर के थ्रू ही आपको पता चलता है, तो यू मस्ट टेक एक्स्ट्रा एफर्ट टू चूज correct procedure to do research design, particular research design for your research work। next, feasibility, this is one more important, as last class I when I told you about the topic or research title, it is necessary to see research title, okay। also I told in
different terms also in different classes also you have to see आपको थ्रू आउट रिसर्च आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी कि आपके रिसर्च किस तरह के आउटपुट दे रहे हैं कितना टाइम कंजम्पशन है किस तरह से वो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एनवायरनमेंट दे रहा है फिजिबिलिटी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके रिसर्च को सक्सेसफुल बनाने के लिए रिसर्च डिजाइनिंग में इस बात का ये जो फाइव टर्म्स हैं कि फीचर्स फॉर अ गुड रिसर्च डिजाइन द फिफ्थ पॉइंट इज फिजिबिलिटी यानी आपकी रिसर्च कितना फ्लेक्सिबल है हाउ मच फ्लेक्सिबिलिटी यू कैन एफर्ट इन योर research work or research progress okay and the feasibility is different from flexibility flexibility you can manipulate your research work in different aspect ओके फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है यहाँ से वहाँ आप थोड़ा फ्लेक्सिबल वर्क कर सके बट फिजिबिलिटी मीन्स इट शुड बी इन ब्रॉडर वे दो रिसर्च टॉपिक्स और रिसर्च वर्क इज नैरो डाउन इन पर्टिकुलर एरिया बट यू हैव टू प्रोड्यूस ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम इन अ फिजिबल मैनर आपके इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू भी ऐसा कोई रिसर्च अगर किसी को एटम में वर्क करना है तो ये नहीं कि एटम और न्यूक्लियर और प्रोटॉन में वर्क करना है तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट उठा लिया कि जिसको 10 लाख की जरूरत है इस तरह से नहीं यू हैव टू टेक रिसर्च वर्क दैट इज अप्रूवल इन लिमिटेड टाइम इसके लिमिटेड 2 और 3 इयर्स में आप क्या कर सकते हैं इस चीज को देखते हुए समय को देखते हुए आपके पास कितने रिसोर्स हैं इन सब बातों को देखते हुए उस पर कितना इनपुट लगना है उन सब बातों को देखते हुए रिसर्च वर्क का चूज किया जाता है रिसर्च डिजाइन की जाती है व्हाट टाइप ऑफ सैंपल यू वांट टू टेक व्हाट आर द ऑब्जर्वेशनल डिजाइन यू वांट टू मेक सो these are the topic these are the key points you have to assess during your research design next important concept of research design what is the important concept of research design जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स अभी बता चुका है कि इंफॉर्मेशन फ्लो होना चाहिए स्किल एनहांसमेंट होना चाहिए उसके अलावा साइंटिफिक स्टडी में अदर देन दैट these key points in scientific area in scientific study you must consider variable okay the variable are dependent or independent suppose आपके वेरिएबल इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट है वेरिएबल इफ सपोज योर वेरिएबल इज एक्स प्लांट एंड वाई प्लांट आपको दो प्लांट्स के बारे में स्टडी करनी है या फिर एक प्लांट के बारे में और वहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करनी है देन दिस विल बी टू वेरिएबल ओके दो चल हो जाएंगे एक प्लांट हो जाएगा और एक हो जाएगा प्लांट हो जाएगा और एक उसका इन्वायरमेंट हो जाएगा one is dependent on the another or it is independent plant environment पे dependent है या नहीं या वो independent है ये सब आपको while designing your research you have to consider it why I am saying this for example अगर वो पौधा बारिश के महीने में ही होता है या आपको सिर्फ फिर 15 डेज का ही टाइम मिलेगा if you are working on pteridophyte or rare plant or bryophyte or algae then that there is they are um, they are grow in limited time okay कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपने लिमिटेड टाइम पे होते हैं या अगर आप चुनाव में की स्टडी कर रहे हैं 5 साल में एक बार होता है तो इस तरीके से आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन में भी और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में आप जब देखेंगे कि there are some factors are dependent on another it is independent or dependent value okay तो किसी चीज पे डिपेंडेंट है कोई किसी चीज पे नहीं डिपेंडेंट है कोई साल भर कोई ऐसी चीज जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ और ह्यूमन बिहेवियर जैसे टॉपिक्स आपको साल भर आप स्टडी कर सकते हैं बट इन टर्म्स ऑफ प्लांट साइंस और इन टर्म्स ऑफ जूलॉजिकल स्टडी you have certain things
दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू टाइम और सीजन टू सीजन। ठीक है, आपको सीजनेबल वेरिएशन पे उसको स्टडी करनी पड़ती है। तो ये सब आपको रिसर्च डिजाइन बनाते वक्त ही ध्यान में रखना है कि आप किस तरह के टॉपिक ले रहे हैं, किस तरह के फैक्टर्स और वेरिएबल्स ले रहे हैं, वो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। यानी अगर आप बारिश के महीने में होने वाले पौधों के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वो तो सिर्फ 3 महीने या 1 महीने के सीजन पे होंगे, बाकी साल के 8 महीने, 12 में से 8 महीने आपको उसके बारे में किस तरह की स्टडी करनी है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, इस तरीके से। while doing research design you have to take consider all these things. First thing, variable, okay। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपके रिसर्च डिजाइन में ही ये इस वक्त आप देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द वेरिएबल्स, व्हाट आर एक्सट्रोनियस। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्सट्रोनियस आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कोशिश करें रिसर्च के दौरान इस तरह की चीजें या वेरिएबल्स लेने की जो मोस्टली इंडिपेंडेंट हो या जिसको किसी उसके फैक्टर्स डिपेंडेंट भी हो तो रिस्ट्रिक्टेड ना हो या उनकी अवेलेबिलिटी में कमी ना हो। इससे क्या होता है कि आप अपने फ्लो के अनुसार यू कैन डू योर वर्क थ्रू योर फ्लो और टू according to your suitable time, okay, not according to the dependent value of the variables. So this is the another point you have to consider while designing your research. Then control, the next topic is control. As साइंटिफिक स्टडी, यू नो अबाउट कंट्रोल। साइंटिफिक स्टडी की जब हम बात करते हैं, हर एक्सपेरिमेंट, हर फील्ड में देयर आर कंट्रोल। एक्सपेरिमेंटल एक वैल्यू होता है और एक होता है जिसको छेड़ा ना जाए। ठीक है, सपोज आप कोई सैंपल में काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने एल्गी पे काम किया, आपने शैवाल पे काम किया, या आप किसी खास प्रजाति पे काम कर रहे हैं, चाहे वो जानवर की प्रजाति हो या पेड़ पौधे की प्रजाति हो, या आप बच्चों पे भी वर्क कर रहे हैं, बच्चों की साइकोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आपने ग्रुप में स्टडी किया, आपके पास एक स्कूल है जिसमें 20 बच्चे पढ़ते हैं, तो आपने 20 बच्चों को टारगेट बना लिया, आपने 20 बच्चों को कंट्रोल रख लिया, 20 बच्चों को आपने किसी तरह के एनवायरनमेंट में दिया और किसी किसी को आपने कुछ भी नहीं किया। दैट दोज control those things which are not used in experiment but they are kept as it is। ठीक है, तो these are control, वो वैल्यूज या वेरिएबल का वो पार्ट जो किसी तरीके से उसको छेड़ा नहीं जाता या उस पर किसी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं होता है, तो वो कंट्रोल कहते हैं। वो जो नेचुरल चीजें हैं उस पर रहते हैं। सो एवरी टाइम यू टेक एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट्स, अगर आप प्लांट की बात करेंगे तो जब भी आप प्लांट पे काम करते हैं, ठीक है, आपके पास लिमिटेड, आपके पास 10 पेड़ है, आपको एक रेयर या दुर्लभ प्रजाति मिली है, आपको 5 पौधे मिले हैं, आप एक पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपके पास 4 बचे हैं, 4 में से मस्ट है कि आप 2 को छेड़े नहीं, भले आपका एक्सपेरिमेंट खराब हो जाए। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको अपने सैंपल्स को बचा के रखने हैं या आप जिस चीज पे काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपके पास वर्क ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको आप संभाल के रखेंगे। तो these are the thing why control is needed, why control is kept aside। आपको जो भी डेटा साइज है, डेटा है, आप क्या करते हैं उसको सिलेक्टेड वर्क का आप करेंगे, कितना आपको सिलेक्ट करना है, कितना सैंपल साइज लेना है, कितना आपको छोड़ना है, ये सब क्या होता है, वेरिएबल और कंट्रोल ऑफ एक्सपेरिमेंट, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल चूज करते वक्त आप उसको ध्यान रखेंगे, इसको कंसीडर करेंगे और रिसर्च डिजाइन के वक्त ही इन सब बातों को आप बनाना शुरू करेंगे कि आपको रिसर्च में किस किस तरह का काम करना है और इसको कैसे कैसे डिजाइन करनी है। नेक्स्ट, देन रिलेशनशिप शुड बी कंफर्म। रिलेशनशिप शुड बी कंफर्म मीन्स आपने 2 वेरिएबल ले लिए, 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ले लिए, प्लांट एंड इट्स एनवायरनमेंट और प्लांट और सॉइल,
अब आपको उन दोनों के बीच में रिलेशन देखना है, उनके बीच में कंफाउंड रिलेशन है भी या नहीं. ओके, सो all this will come through your data analysis part. All this will take to your which type of data analysis you are doing, what type of um, operational value are you are taking. Okay, आप किस तरह से उस पर एक्सरसाइज करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उन पे किस तरह के प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं. इससे आपको रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल, आपको इससे रिलेशनशिप कंफाउंड करने से पता चलेगा. आप अनोवा करके देखेंगे, आप SPSS एनालिसिस करके देखेंगे अनोवा, और different type of you will see standard deviation or any kind of different computer generated or manual experiment you will see. So you will find the relationship between different values. So these are the important concept while preparing your research design. Okay, so I think this is the four important key point, basic point needed or you should consider during designing your research or in research design. We will uh, again continue this research design topic with more example for in next video. Thank you so much.